So yeah, I am back with another very interesting video for teenagers. Back then when I started my channel, I used to make those kind of videos that mistakes they are doing, what are the things they should avoid, what are the things they should do, what are the important habits, what are the important skills they should learn. And that was also a reason behind the starting of this channel. Okay, making our teenagers aware of those opportunities that they are unaware, and to make aware of those habits they are involved knowingly or unknowingly, which is going to impact in not a good way in long term in their life. See, there is no point of being a largest youth population country in this world if most of them are not even aware of their own potential and they are involved in those things which are not going to help even them or a country at all. So I think that मैं उस सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा. From now on I will be discussing more about teenagers, what they should do, what they are doing, what are the opportunities for them, what they can do to build a good career, what are the career options they can opt, what are the things they are involved knowingly or unknowingly that is going to impact them in longer term, what are the skills they should learn, and हम फिर पैशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे एंड लॉट मोर. आज की इस वीडियो में हम जान रहे होंगे 6 मिस्टेक्स आवर टीनेजर्स आर मेकिंग, जानबूझकर या अनजाने में. सी, दिस इज द पॉइंट ऑफ अवर लाइफ जहां पर एनर्जी हमारी सबसे ज्यादा होती है, एट द पीक, बट एट द सेम टाइम वी डोंट नो वेयर एंड हाउ टू यूज देम, विच रिजल्ट वी गेट इन्वॉल्व इन एनी टास्क और एनीथिंग जो हमारे रास्ते में आती है without even knowing how it is going to impact in long term. The first thing our teenagers is struggling today is setting up right priorities, which is also the first mistake in our mistakes list. They don't know कि किस चीज़ को उन्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए. बस जो भी उनके रास्ते में आती है they think that this is important in this time और बस वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने आना चाहिए कि which is the most important thing and which is going to impact in a good way or in a bad way in longer term. And due to not having clear priorities, they face some of the bigger issues, like they fall in love with anyone, make them the topmost priority, and when that person leave, they left with nothing to take care of in their life anymore. First of all, you need to understand one thing, that this is the point of your life where you build career, where you build the foundation of your whole career, not having silly breakups. You need to understand what is more important in your life. A friend is asking you to have party. Now this is you who has to figure out what to give more importance and what should be ignored at all. See, हमारे लाइफ में ना कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता है जिसको आप यूं ही गुजार दो. Each part of our life has their own importance. Every step that you are taking, every decision that you are taking, everything that you are choosing, you have to think about longer terms. अगर आपको clear priorities set करना आ गया ना, then this thing can alone lead you to a better future, because this thing is in your control. Uncertainty किसी को नहीं पता होती है, but the thing which is in your control is setting right priorities, setting right decisions and choosing right things for your life. And now come to the second mistake, and that is spending this time ऐसे ही, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले बताया कि there is no point of our life जिसको आप यूं ही गुजार दो, और every person in this point is spending their life like this, not taking care of their health, not taking of their mental health, not taking care of their future, not thinking about their career, just spending जो भी उनके सामने आ रहा है, जो भी चीज़ें उनके रास्ते में आ रही हैं वो बस उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. You need to figure out something जो कि आपके लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाली है. You need to think about your career at this point, because whatever you will do in this point is going to impact in long term, is going to impact in your whole career, either physical health, mental health, career, family, goals, passion. You have to think about them all. और यही टाइम है जहां पर आप सुकून से इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो. You can take risk, you can plan your future. ऐसा नहीं है कि आप जैसे प्लान करोगे वैसा ही होने वाला है, बट when you plan तभी आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हो. अगर आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, देन इट इज़ अनलाइकली टू हैपन. अगर आप किसी एक गोल को सेट करते हो, उसे नोट डाउन कर लेते हो, तभी ना आप उसके लिए सोचते हो और उसके लिए कुछ काम करते हो. जब तक आपके पास वो मौजूद ही नहीं होगा तो फिर आप तो उस पर कभी काम करना स्टार्ट करोगे ही नहीं. तो जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है, टेक कंट्रोल ऑफ देम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. टू नॉट टेक दिस टाइम वेरी लाइटली. और या आप अपने फ्यूचर को बिल्ड करते के साथ भी इंजॉय कर सकते हो. आई एम ऑल्सो इन योर एज एंड आई ऑल्सो एंजॉय. आई ऑल्सो वॉच मूवीज समटाइम्स. आई ऑल्सो डू पार्टी, बट आई ऑल्सो फोकस ऑन माई करियर एज वेल. और यही बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि डू एवरीथिंग बट डू समथिंग फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो.
Do something for your career also. Now come to the third mistake, and that is seeking partner. Seeking someone to spend your time either as friend or of opposite gender. आप उस point of life में आ चुके होते हो जहां पर आपको किसी की need होनी start हो जाती है. But before seeking anyone, seek yourself. Before starting to look happiness and look something in other than yourself, first of all look at yourself. That are you complete or not? Start spending time alone. Start spending time with yourself. Take care of yourself. अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रख सकते हो तो कोई अगर आपके पास आएगा तो आप उनका ख्याल कैसे रख सकते हो? अगर आप सारी खुशियाँ किसी और में देख रहे हो तो इट इज़ लाइकली कि जब वो बंदा आपके पास से जाता है देन यू विल बी टोटली अलोन और आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी जो आपको खुश कर सकती है. सो सीक हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ. This is one of the biggest issue our teenagers are facing. They start feeling broken in a very early age. आपको पता नहीं है कि असली broken का मतलब हार्ट ब्रेक नहीं होता है. What are your financial conditions? क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? आप कुछ सालों के बाद एक ऐसे पॉइंट में एंटर करने वाले हो जहां पर एक फैमिली की जिम्मेदारी आप पर आने वाली है. क्या आपने उसके लिए प्लान किया है? यू सीक फॉर एनीवन और आपको कोई भी मिल जाता है, आप उसके लिए सेटल कर जाते हो एंड देन व्हेन दे लीव यू लेफ्ट विथ नथिंग. आपने उसे सबसे टॉप पर रखा होता है अपने प्रायोरिटी लिस्ट में एंड व्हेन दे लीव आपके पास कोई ऐसा सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी नहीं होता है जिस पर आप ध्यान लगा सको. आप जिस पॉइंट ऑफ लाइफ पे हो ना वहां से कुछ सालों के बाद ही आपके ऊपर ऐसी ऐसी जिम्मेदारी आने वाली है जिसका हो सकता है कि अभी आपकी अवेयरनेस में ना हो बट इन अपकमिंग ईयर्स यू विल गेट टू नो कि दे आर मच बिगर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दैट यू आर फेसिंग इन दीज डेज. आपको लगता है कि अभी आपके ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, ये छोटी छोटी ब्रेकअप्स बहुत बड़ी हैं, बट जब आप आगे जाओगे ना तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो आपको लगेगा ही नहीं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए. सो प्रिपेयर फॉर दैट. इंस्टीड ऑफ सीकिंग समवन एल्स सीक योरसेल्फ. क्या आपको आपके बारे में पता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पैशन क्या है, पैशन तो दूर की बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हॉबी क्या है, और वैसे भी आपको तो अभी खाली टाइम मिलता ही नहीं है तो आपको हॉबी तो दूर की बात है. क्या आपको पता है कि आपका गोल क्या है? व्हाट आर योर करियर प्लानिंग? सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम इंस्टीड ऑफ थिंकिंग अबाउट सम सिली थिंग्स. अगर आप अपने आप में कंप्लीट हो जाओगे ना, इफ यू आर एंजॉइंग पीस अलोन, इफ यू आर सक्सेसफुली स्पेंडिंग योर टाइम अलोन विदाउट फीलिंग अलोन, तब आप कंप्लीट हो और आपको इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू आवर टीनेजर्स आर फेसिंग और ड्यू टू दिस दे स्टार्ट फीलिंग ब्रोकन इन वेरी अर्ली एज. और ना आप जब आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये असल ब्रोकन का मतलब नहीं होता है. व्हाट आर योर फाइनेंशियल कंडीशंस वो डिसाइड करती है कि आप ब्रोकन हो या नहीं हो एंड दैट ब्रोकन पार्ट कम्स लेटर. And now come to the biggest mistake our teenagers are making and that is spending endlessly on cool stuffs. एक चीज़ मैं बताऊं, कुछ लोग कहते हैं ना कि this is the point of life जहाँ पर आपको enjoy करने का मौका मिलता है, जहाँ पर आप मन चाहे ख्वाहिशों को पूरी कर सकते हो. But I say one thing कि अपनी अय्याशी के चक्कर में ना अपने बाप पर लोड मत दो, अपने घर पर लोड मत दो. आप ना आज अगर 800 के जूते पहन रहोगे ना कोई नहीं पूछ रहा होगा. अपार्ट फ्रॉम योर कूल फ्रेंड्स सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं देख रही होगी कि आपकी अभी आउटलुक किस तरीके की है इन टर्म्स ऑफ योर शूज़, योर सनग्लासेस, योर शर्ट, योर पैंट, योर फ़ोन. बट हाँ, कल पूछेगी जब आप उस पोजीशन पर होगे, आपने 20,000 का फ़ोन लिया, क्या करोगे उसका? क्या आपको पता भी है कि उस 20,000 के फ़ोन में हाई फ्रेम रेट जिस पर आपके वीडियो गेम्स अच्छे से चल सकते हैं उसके अलावा कुछ हो सकती है? स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम. 5,000 के जूते, गॉगल्स, ब्रांडेड शर्ट्स. कभी ना पैसे कमा के देखो कि व्हाट इट टेक्स टू अर्न अ सिंगल पेनी, और ना तब अपने बाप से पूछो जा करके कि कैसा फील होता है जब लोड इतना बढ़ जाता है और घर में पैसों की कमी हो जाती है और आप कहते हो कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लाइफ जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो. इसको एंजॉयमेंट नहीं कहा जाता है, इसको बेवकूफ़ी कहा जाता है. 5-5, 6-6 के ईयरबड्स, ये तो बहुत कम है. लोग एप्पल के ईयरबड लेते हैं इस उम्र में, और वो किस लिए? उनके पास बात करने वाला भी कोई नहीं होता, सिर्फ वो गाने सुनेंगे बाय थिंकिंग अबाउट समवन, जिसको उसके बारे में घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है. 20,000 के फ़ोन जिस पर ना कभी एक कॉल आती है, उसको बस इसलिए कि अपने कूल फ्रेंड्स को दिखा पाओ कि या आई एम यूजिंग दिस फ़ोन. मैं 3 साल से एक फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ एंड वन थिंग आई वुड लाइक टेल यू कि मैं इसी फ़ोन की वजह से अभी तक 60+ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंड हैव अर्नड डबल्ड एंड ट्रिपल्ड ऑफ दैट अमाउंट ऑफ फ़ोन. लोगों को मैकबुक भी चाहिए या लैपटॉप जिनको चाहिए होता है उसको उसके लिए थोड़ा समझ में आता है कि या तो वो लेक्चर देखने के लिए लेते हैं या फिर कोई स्किल पर काम करने के लिए देखते हैं. बट आप गेम खेलने के लिए ख़रीद लिए. अगर आपको गेमिंग में आगे जाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी. टाइम पास के लिए गेम खेल के कोई गेमर नहीं बना आज तक. सी, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. आपको उसमें प्रोफेशनल बनना होगा तभी आप जा करके वहाँ से कुछ रिटर्न्स पा सकते हो. अगर आपको अच्छे कैमरे के लिए फ़ोन खरीदने हैं तो आपको उस फोटोग्राफी स्किल को मोनेटाइज करने आना चाहिए.
आज के टाइम पे कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिस पर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस पर बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। आप आज हर फील्ड में अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो, बट आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। बट इफ़ यू डोंट हैव प्लान, तब आपको 20,000, 25,000, 30,000 एक फ़ोन में इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट मिस्टेक है, वो इसी से है कि अगर आपके पास उतने पैसे हो रहे हैं, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। आपका काम 800 के जूते पे हो जा रहा है, आप बाकी के 2,000, 3,000 या तो आप घर पे ही दे सकते हो, या फिर अगर वो आपके पास ही बच रहे हैं, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। कोई स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दो, कोई ऐसा टूल खरीदो जो कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान पर हेल्प हो। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, आप उन कोर्सेज को खरीदो। स्टार्ट लर्निंग एनी ऑफ देम। स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ अपस्किलिंग योर सेल्फ। आप उस पैसों को जिम में इन्वेस्ट करो, गो टू जिम, स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ। यू नीड टू थिंक, जो मैंने पहले बताया ना कि सेटिंग अप राइट प्रायोरिटीज। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज। आप जैसी प्रायोरिटीज सेट करोगे, आप वैसे ही उन्हें इंपॉर्टेंस दोगे और एट द एंड आप वैसे ही बनोगे। सो बी क्लियर अबाउट हु यू वांना बिकम, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप सारी चीजों को चूज करो। फोन से लेकर के आपके जूते तक वो उस तरीके से होने चाहिए कि बस एवरेज रहे, जिससे कि आपके घर पर ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिशें पूरी करनी है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपके ही एज के बहुत सारे बच्चे कमा करके ना वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अपने घर में भी हेल्प कर रहे हैं। And who is speaking to you is also doing the same. So if you want to fulfill your desires, then think once again कि आप उन ख्वाहिशों को अपने घर के पैसों पे पूरा करोगे। आप वो सारे अपने खर्चे भी कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, but you need to think about that. So now come to the last mistake, and that is the biggest mistake of my today's list, and that is getting inspired from social media. मैंने ये नहीं कहा कि spending a lot of time on social media, ये उसी का नतीजा है, स्पेंडिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। वहां से आप इंस्पायर होना शुरू हो गए हो। ठीक है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो बाय गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया। और ना आज का जमाना ऐसा बन गया है कि कोई चीज हमारे पास एक्चुअल होने से ज्यादा वो मैटर करती है कि लोग देख रहे हैं कि नहीं कि हमारे पास वो है। लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल कि आज अच्छी जिंदगी जीने से ज्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि लोग देख रहे हैं कि नहीं कि हाँ मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया। वो शो ऑफ के लिए बनी है, वहां पर लोग अपनी ब्राइट साइड दिखाते हैं। आप कोई चीज स्टार्ट कर लेते हो जस्ट बाय सीइंग दोज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। जो चीजें वहां पर दिख रही है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे से लाइटिंग के साथ, बहुत बना के, बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जाती हैं, जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन। ठीक है, वो लोग अपने काम कर रहे हैं, वो लोग अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, बट दिस इज यू हु इज जस्ट कंज्यूमिंग इंटलेसली एंड गेटिंग इंस्पायर्ड। नॉलेज आप रील से ले रहे हो, आप किताबों को तो बिल्कुल भूल ही गए हो, सारे कंटेंट अपलोडेड है, आपको लेक्चर से लेकर के पोस्ट सारी चीजों से आपको इतना ज्ञान मिल जा रहा है कि फिर आपने किताब को ऐसा छोड़ ही दिया है। बट द थिंग यू आर मिसिंग इज कि वहां पर जो भी चीज है ना, वो कहीं ना कहीं दिखावा के लिए ज्यादा है। हेल्पफुल चीजें भी हैं, बट उसे आप देखते कहाँ। देयर आर पॉडकास्ट जो कि 2 घंटे की होती है, बट उसे आप देखते कहाँ। देयर आर लॉट्स ऑफ चैनल, देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टाग्राम पेजेस ऑल्सो, जहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, बट आप फॉलो करोगे मीम पेजेस। आपकी सुबह होती है उन सारे मीम पेजेस के स्टोरी से, और आपकी रात पूरी खत्म होती है उसी स्टोरी को देखते हुए और उन्हीं मीम्स को सिर्फ डबल टैप करते हुए। आप जितना टाइम अपने सोशल मीडिया को सुधारने में इन्वेस्ट करते हो ना, जितना आप स्पेंड करते हो, चेंजिंग डीपी, चेंजिंग बायो के लिए आप एक अच्छा सा फॉन्ट चूज करोगे, फिर वहां पर आप सारे बायो को लिख करके कॉपी करोगे, फिर वहां से पेस्ट करोगे। आप डीपी के लिए घंटों बैठ करके फोटो छांटोगे कि कौन सी सही है। आप फोटो शूट पर जाओगे जस्ट टू अपडेट योर सोशल मीडिया हैंडल। आप लोगों से इंस्पायर होकर के वैसा बनना तो चाहते हो, but the problem is कि you are getting inspired just by seeing them on social media. If you want to be inspired, then आप उन्हें रियल लाइफ में देखो पहले कि what are the behind the scenes। आज जिनके भी उतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज पर बहुत काम किया है, तब कुछ सामने दिख रहा है, और आप सिर्फ काम करते हो सामने दिखाने के लिए। That's it। आपको ये नहीं पता है कि अगर आप बिहाइंड द सीन आप मेहनत करोगे तो वो फ्रंट पे दिखेगा। फ्रंट पे दिखाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना आप टाइम स्पेंड करते हो ना, आई थिंक कि उतना तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी स्पेंड नहीं करते हो। आपको शूट पर जाने की जरूरत पड़ती है, क्यों? आपके पास कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है, आपके पास कोई ऐसा काम ही नहीं है जो आप वो करते हुए फोटो डाल सको नेचुरली। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी कि आप किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, और यहीं से सारी मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपको पता होगा ना कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और किसको इग्नोर करना है, तो आप ऐसी मिस्टेक्स करोगे ही। आपको पता होगा कि कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको मैं करूंगा तो मेरे क्या नुकसान होंगे इन लॉन्ग टर्म, और क्या सिर्फ अभी के लिए जरूरी है
और उससे कुछ आगे लेना देना नहीं है। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर प्रायोरिटीज, सेट सम गुड वन एंड स्टार्ट फॉलोइंग ऑन देम। तो बस इनफ फॉर दिस पार्ट। आई होप आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा और आई होप इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। फॉर मी दिस एज इज द वेरी इंपॉर्टेंट एज। आई सॉ माई टीन एज माई फाउंडेशन ऑफ हु आई एम टुडे। Whatever I did is impacting to me till date. So think about them. अगर कोई ऐसे मिस्टेक्स आप कर रहे हो then avoid it, stop it and then start doing some good things. किताबें पढ़ो, read some good books. I have made a book recommendation. उसे जा करके देखो. There are lots of good books जिसे आप पढ़ करके बहुत सारी गलतियों को अवॉइड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो जो आपको आपके करियर में हेल्प करने वाली है। स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ, स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस पार्ट देन शेयर विद समवन हु नीड्स टू हियर। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।